Good morning, students. Welcome to another lecture of your physics chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. Last class we had studied about parallel plate capacitor. There were two cases. One was without any dielectric, one was with vacuum or air, and other was with dielectric, and we had derived the formula for calculating the capacitance so what was the formula? Capacitance epsilon naught A upon D. This was for when the parallel plate capacitor's dielectric medium is air or vacuum, and C is equal to K epsilon naught A upon D. This was the case when the intervening medium is completely filled with the dielectric, okay, which has a dielectric constant K. So what was the effect of adding a dielectric on the parallel plate capacitor? The capacitance value had increased K times with respect to its value when there was no dielectric, it was only air. So this is the effect of adding a dielectric. It has increased K times with respect to the value of the capacitance when the dielectric medium is air. Acha, what is the effect on the electric field? The new electric field E will be equal to E naught upon K. The electric field will reduce, और किस फैक्टर से रिड्यूस हो गया? K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा. इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट विल रिड्यूस K टाइम्स with respect to the value when there was no dielectric medium inside, it was only air. तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखें ताकि we can proceed to the numerical. अभी numerical in example 2.8 is a special case. उस special case को कैसे solve करना है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं. So what is given in example 2.8? I will read it for you. A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of the parallel plate capacitor, but has a thickness 3/4 D, where D is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? इसको समझने के लिए पहले I'll draw the diagram, बट मैं जो आपको अभी दूंगा वो एक जनरलाइज्ड केस है. उसका एक बार आप समझ गए तो यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो व्हाट हियर दिस प्रॉब्लम सेज इज देयर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which has an area of cross section A, and this separation is D. But in 3/4 times D, we have introduced a dielectric with dielectric constant K. So it has a dielectric constant K. It is occupying 3/4 part of D. 1/4 part of for this is air. 1/4 times D is air. It is not occupying the whole space. So 1/4 part is D. 1/4 D is air and 3/4 D is dielectric. So what will be its new capacitance? What we need to do is we have to calculate the capacitance when this is the condition. तो अब हम क्या करते हैं कि we will derive a formula. जब ये अभी यहाँ पे तो थिकनेस यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है 3/4 D विथ रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन. उसका थिकनेस T भी हो सकता है. तो हम एक केस लेते हैं जिसमें उसका थिकनेस T है और उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा. लेट अस सी. नाउ
consider this general case. We are not solving right now this problem. We will first derive a formula with the general case, और उस general case में इसके values को डाल के we'll try to calculate the value of new capacitance. Now there is a general case. Now this is a parallel plate capacitors. These two plates are charged with the charge Q0. हाँ, इसमें कितना चार्ज है Q0. That means its surface charge density is Q upon A. Okay. Now V naught is the potential difference when there is no dielectric inside. हाँ, ये dielectric नहीं है. So V naught is the value when there is no dielectric inside, that is equal to E naught into D. E naught यानी इसके अंदर का जो electric field है multiplied by the separation E naught into D. So that means the capacitance when there is no dielectric is C naught is equal to Q naught upon V naught. That means it is C naught is equal to epsilon naught A upon D. Now we have put a dielectric which actually is equal in area. एरिया तो इक्वल है बट इट हैज़ अ थिकनेस T, है ना. इट इज़ नॉट ऑक्यूपाइंग द होल स्पेस. इट इज़ नॉट ऑक्यूपाइंग द होल स्पेस. इसका थिकनेस कितना है T. ओके. नाउ एक चीज़ आप याद रखिए, डायलैक्ट्रिक मैं यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँगा, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू में चेंजेस नहीं आएंगे, है ना. ऐसा नहीं बोल के बीचों बीच रख दिया तो कुछ चेंज हो रहा है या साइड में रख दिया तो चेंज हो रहा है, कुछ नहीं. यहाँ पे शो करने के लिए मैंने बीचों बीच रखा है, बट इट कैन ऑक्यूपाई एनी एरिया. ओके. सो कितनी थिकनेस में डायलैक्ट्रिक है? T थिकनेस में. तो बाकी जगह पे क्या है? यहाँ पे एयर है. तो कितने जगह पे एयर है? D माइनस T. नाउ यहाँ पे एयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका E नॉट है, लेकिन यहाँ इस डायलैक्ट्रिक के अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा बिकॉज डायलैक्ट्रिक विल पोलराइज. तो अगर पोलराइज हो जाएगा तो यहाँ पे इसका सरफेस चार्ज नेगेटिव क्रिएट हो जाएंगे. इस डायलैक्ट्रिक के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाएगा और इधर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. सो द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस, लेट अस सपोज इट इज E. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? E है. इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E है. एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था E नॉट. ओके. नाउ हमको क्या करना है? पहले तो सबसे पहले क्या करना है, अगर इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो उसमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर, पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन द डायलैक्ट्रिक. तो सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर. तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं उसको V टोटल या V लिखता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर, है ना, जैसे कि हमने ये बोला पोटेंशियल डिफरेंस इज E नॉट इंटू D. इस केस में E नॉट इंटू D नहीं होगा, इस केस में होगा E नॉट इंटू D माइनस T. कितने जगह पे है एयर? D माइनस T थिकनेस में है एयर. तो E नॉट इंटू D माइनस T, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसमें ऐड करेंगे प्लस जो डायलैक्ट्रिक के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है. हमने इसका बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बोला E, और कितने थिकनेस में है? ये है T थिकनेस में. ओके. तो ये हो गया इस पूरे कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस. अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि E इसके अंदर रिड्यूस होगा तो किस फैक्टर से रिड्यूस होगा? इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है K. तो E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K, है ना. इतना डिफरेंट, यानी अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होगा, अगर ड्रॉप होगा तो कितना ड्रॉप होगा? E नॉट अपॉन K, जो K इज द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. सो हियर वी कैन राइट V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट अपॉन K इंटू T. ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. ओके. इसमें से मैं E नॉट को तो बाहर निकाल सकता हूँ, अंदर बच गया D माइनस T प्लस T अपॉन K, इतना बच गया. दिस इज द न्यू पोटेंशियल
डिफरेंस। अगर मैं ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल देता हूँ तो ये नया पोटेंशियल डिफरेंस ये बनता है। तो मैं इससे अब नया कैपेसिटेंस भी तो निकाल सकता हूँ, है ना। मैं नया कैपेसिटेंस कैसे निकालूंगा? दैट विल बी सी नॉट क्यू नॉट अपॉन वी नया, क्योंकि चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा, चार्ज तो उतना ही लगेगा, तो क्यू नॉट तो वही रहेगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया। सो न्यू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन V। क्या होगा? क्यू नॉट अपॉन V। और यहाँ पे हम क्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट को लिख सकते हैं सिग्मा ए। क्यू नॉट को हम सिग्मा ए लिख सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि E इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं सारा अगर वैल्यू इसमें डाल देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, है ना। और Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए कर देता हूँ। तो न्यू कैपेसिटेंस विल बी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, तो अब ये हो गया, ये फॉर्मूले में अगर इसके सिग्मा कैंसिल आउट हो गया तो न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, एंड दिस is the formula of new capacitance. C is equal to epsilon naught A upon D minus T plus T upon K, where D is the separation between the two plates. D क्या है? Separation between the two plates. T is the thickness of the dielectric. T is the thickness of the dielectric. K is the dielectric constant. Epsilon naught is the permittivity of the free space. A is the area of the capacitance plate, area of the plate. तो अब हमको ये पता चल गया है कैपेसिटेंस का ये जो फॉर्मूला है, नया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब मैं बाकी सबको रिमूव करता हूँ, हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे जिस पे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जिसके लिए इतना सारा हमने डेरिवेशन निकाला है। ओके, नाउ फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? टी हियर इज 3/4 D. Okay, for this question the value of t is 3/4 D. So we have just derived the formula C is equal to epsilon naught A upon D minus T plus T upon K is the capacitance. What we need to do, we have to put the value of T here. Okay. So the value of T here, I'll put C is equal to epsilon naught A D minus 3/4 D plus 3/4 D upon K. Okay. So this is again epsilon naught A. I can take D common. Okay. So यहाँ D अगर मैं कॉमन निकालता हूँ 1 minus 3/4 plus 3/4 K, ये निकल गया
ओके, नाउ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज द इनिशियल कैपेसिटेंस। ये क्या है? इनिशियल कैपेसिटेंस है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू सी नॉट, जो इसका पहले का कैपेसिटेंस था इन एयर का। जब अगर ये नहीं रहता तब क्या होता? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता। तो वो हो गया अपॉन, है ना, 1 माइनस 3/4 कितना हो गया? 1/4, 1/4 प्लस 3/4 के। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 4 के एलसीएम ले लिया, या यहाँ पे ही कर देता हूँ, दैट विल बी सी नॉट अपॉन 4 के प्लस 3. Okay, so the final answer here will be C naught into 4k upon k plus 3, and this is the answer, 4k upon k plus 3 into C naught. So this is the value of new capacitance. This is the value of new capacitance. इसका आंसर आपको इस फॉर्मूला से मिल गया। ओके, ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस आएंगे जिसमें टी के अलग अलग वैल्यू रहेंगे, थिकनेस की अलग अलग वैल्यू रहेगी। बस आप इस फॉर्मूले को अब याद रखें अगर, तो वो चेंज हो जाएगा। अब सपोज हमने जो फॉर्मूलाज डिराइव किया था, क्या ये फॉर्मूला फिट बैठता है उसमें, है ना? आई विल जस्ट राइट इट डाउन, है ना? क्या ये फॉर्मूला सबके लिए फिट बैठता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सपोज कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, सिर्फ एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, सिर्फ एयर है, तब क्या ये फॉर्मूला फिट बैठेगा? C, उस केस में क्या होगा? T इज इक्वल टू डी, उस केस में क्या होगा? T इज इक्वल टू डी एंड K इज इक्वल टू 1। क्या होगा? T इज इक्वल टू डी एंड K इज इक्वल टू 1। तो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस डी प्लस डी, K इज इक्वल टू 1 और T इक्वल टू, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना बचा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। वही फॉर्मूला है ना? और अगर डाइलेक्ट्रिक है पूरे थिकनेस में है ना? अगर डाइलेक्ट्रिक है पूरे थिकनेस में है तो अगेन सेम फॉर्मूला, है ना? तो ये हो जाएगा नया जो है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डी, पूरे थिकनेस में तो T इज इक्वल टू डी, फिर प्लस D अपॉन K। क्या हो जाएगा? प्लस D अपॉन K। फिर ये D कट गया, C इज इक्वल टू के ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ पे भी वही जो हमने जो कैलकुलेट किया था, इफ इट इज़ ऑक्यूपाइंग द होल स्पेस, यही फॉर्मूला है उसका, ये भी प्रूव आउट हो गया। अब तीसरा एक और केस है कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक की जगह यहाँ पे हमने कंडक्टिंग स्लैब रख दिया, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा उसके जगह पे हमने कंडक्टिंग स्लैब रख दिया, तब क्या होगा, है ना? फिर अब इसी फॉर्मूला में जाते हैं, ये फॉर्मूला उसके लिए भी वैलिड है। अगर कंडक्टिंग स्लैब रख दिया, अगर वहाँ पे एक कंडक्टिंग स्लैब रख दिया तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? चेंज ये होगा कि K विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा उसका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाएगा, और T डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? T डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी। उस केस में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी। नाउ इन ईच एंड एवरी केस व्हाट इज हैपनिंग टू कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? चाहे उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक हो
या कंडक्टिंग स्लैब हो, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क ये पड़ रहा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है उससे हम कुछ माइनस कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर से माइनस कर रहे हैं यानी टोटल वैल्यू क्या हो रही है, कैपेसिटेंस की इंक्रीज़ हो रही है। तो इफ़ वी कंपेयर इट विथ कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ नथिंग इनसाइड, नथिंग मीन्स एयर और वैक्यूम, और अगर उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो व्हाट विल हैपन इज इट्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक की जगह पे हम अगर एक कंडक्टिंग स्लैब भी डाल देंगे तब भी इट्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। सो नॉर्मली व्हाट हैपन्स इज वट एवर कैपेसिटेंस यू विल गेट इन द मार्केट इट विल हैव डाइलेक्ट्रिक इनसाइड, या तो डाइलेक्ट्रिक होगा या डाइलेक्ट्रिक प्लस कंडक्टर बीच में रखा होगा, सैंडविच होगा। विथ एयर वाला तो आपको शायद ही मिले, क्योंकि उसमें क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है ना। अगर सिर्फ एयर रहे और डी बहुत स्मॉल होता है तो उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होगा, और क्या होगा कि कभी वो एक दूसरे से टच हो गया तो ये जो कैपेसिटेंस का पूरा जो बनाने का जो था वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो तो कंडक्टर बन जाएगा, एक स्टील एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो वो चार्ज को स्टोर कर ही नहीं पाएगा। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली is the use of capacitor, how its value changes when we put a dielectric, how its value changes when we put a conducting slab। ये सारे चीज़ मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला से बता दिया, इसको आप बहुत अच्छे से याद करके रखें। इट्स नॉट इन योर बुक, इन NCERT बुक, बट उसके अंदर क्वेश्चन जो हैं वो इससे बनेंगे। सो our नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। देखिए इस टॉपिक का प्रूफ तो नहीं आता है, बट इसके फार्मूलास इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज़ जल्दी इसके फार्मूला को समझ लेते हैं कैसे आया। सो विदाउट प्रूफ देयर इज़ वन थिंग विच यू नीड, ये अभी आपको प्रूफ में नहीं है, आपके बुक में भी प्रूफ में नहीं है, हमको ये मान लेना है कि दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन is equal to polarization into a unit vector which is along the outward normal of the surface. What is polarization? Polarization जैसे कि हम पिछले क्लास में बताएंगे, it is a dipole moment per unit volume. Polarization क्या है? Dipole moment per unit volume. So without proof what we can ascertain, अभी हमने प्रूव नहीं, इसको प्रूव नहीं करेंगे, इसको हम मान लेते हैं this is, तो the surface charge density polarization इज इक्वल टू P इंटू यूनिट वेक्टर N। सो ये समझ में आ गया। पोलराइजेशन क्या करेगा, कैपेसिटर के जो प्लेट है उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के अपोजिट होगा, यानी उसको रोकेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने बोला कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो ऐसा केस है जब वहाँ पे इसके अंदर में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अगर वो डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर में अगर डाइलेक्ट्रिक हो जाता है तो व्हाट विल बी द न्यू फॉर्मूला, द न्यू फॉर्मूला विल बी, सपोज उसको हम यूनिट वेक्टर जो है इससे मल्टी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो न्यू फॉर्मूला विल बी सिग्मा माइनस सिग्मा पी, क्या वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, सिग्मा माइनस अभी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये नया होगा। अब यहाँ सिग्मा पी की वैल्यू मैं अगर रख देता हूँ, इट विल बी सिग्मा माइनस पी इंटू यूनिट वेक्टर एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो वी सी हियर इज इक्वल टू सिग्मा माइनस पोलराइजेशन इंटू यूनिट वेक्टर एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू सिग्मा माइनस, जल्दी मैं कर देता हूँ, p को इधर ले आते हैं, तो p को इधर ले आते हैं तो ये यूनिट वेक्टर कॉमन हो गया, प्लस p इज इक्वल टू सिग्मा। नाउ यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का रोल, यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक अंदर रख देते हैं तो कौन ले लेता है, ये फॉर्मूला लेता है एप्सिलॉन नॉट E प्लस पी। तो ये एप्सिलॉन नॉट E प्लस पी जो है, दिस एप्सिलॉन नॉट E प्लस पी इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ डी से, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का रोल प्ले करेगा इन केस ऑफ व्हेन वी पुट अ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी है, और पोलराइजेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, डी भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इनका डायरेक्शन क्या है, तीनों पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ये याद रखिएगा, है ना। सो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका डायरेक्शन सेम रहेगा, इट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो हमने ये बताया इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सी द अमाउंट ऑफ electric field in case of the amount of electric field in case when there is no dielectric inside, है ना, उसका हमने फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस सिग्मा, surface charge density is contributing to this electric field. In case of dielectric, this role is taken by this electric displacement, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, ये रोल कौन ले लेता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो ये जो है ना सिग्निफिकेंस यही हुआ। सो इन वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा. For a dielectric medium, it is D not E, that is directly related to the free charge density. Since P is in the same direction as E, all the three vectors P, E and D are parallel. तो अब विदाउट प्रूफ एक और फॉर्मूला आपको याद रख लेना है ना। क्या क्या याद रख लेना है, एक तो ये याद रख लेना है कि भाई D क्या है, D is epsilon naught E plus P, what is D? Epsilon naught E plus P, एंड इससे पहले हमने कुछ टाइम पे एक डिराइव किया था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, साई से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1, ये साई ई, इसके फॉर्मूला को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट K minus 1 and polarization is equal to psi E into electric field. ये कुछ फॉर्मूलास हैं, इससे शायद न्यूमेरिकल्स आपको आ जाए, तो ये आप इसको याद रखेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इसमें हम ज़्यादा और डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसको कैपेसिटर्स को हम एक दूसरे से कौन कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं और उसमें उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।